अगर सहयोग करने की इच्छा होती है तो हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी सहयोग किया जा सकता है, जैसे कैलिफोर्निया की क्रिस्टीना गोमेज ने सहयोग किया। क्रिस्टीना गोमेज की ओर से यूं तो गत 2 महीने से कोविड-19 व लॉकडाउन की मार झेल रहे कालबेलिया जाति के लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रही है और इसी कड़ी में आज 100 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। पुष्कर की प्रसिद्ध नृत्यांगना राखी कालबेलिया के द्वारा ये सामग्री वितरित की गई। इस कार्य को आगे बढ़ाने में राखी कालबेलिया के पति साधुनाथ व जनसेवक कल्याणनाथ सहयोग कर रहे हैं। यही नहीं, इस कार्य में वार्ड पंच के पति सुखदेव रावत एवं पूर्व सरपंच मांगीलाल रावत भी समय समय पर यहाँ सहयोग कर इन्हें राहत प्रदान करा रहे हैं। राखी कालबेलिया ने बताया कि प्रत्येक परिवार को 15 किलो आटा, 2 किलो तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा दिया गया। ब्रह्म पुष्कर न्यूज़ से दिनेश पाराशर के साथ मीनल शर्मा की रिपोर्ट। प्रसिद्ध नृत्यांगना राखी कालबेलिया ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास में 100 घरों की कालबेलिया बस्ती है, लेकिन लगभग 15 से 20 साल हो गए यहाँ अभी तक लाइट एवं पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। इसको लेकर पूर्व में भी कई बार प्रशासन से बातचीत की। प्रशासन से जवाब तो सकारात्मक हमेशा मिलता रहा है, लेकिन अभी तक उनके यहाँ लाइट उपलब्ध नहीं कराई है, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क। Yes, I'm doing this work together Yes. with all the people in Pushkar and with Raki and Sadhu. This is, we've been doing this for a month now, and so we have a good system, and many donors from around the world gave money because we are trying to just bridge the gap until the government is able to supply food efficiently. Okay. So this is what we're doing. Okay, any message you want to give for us COVID-19, any things to do? Well, I know that we all around the world are experiencing something that we've never experienced before, and there's a lot that's being asked of us. So I think in this time of uncertainty, it's an opportunity to work together. All people, all castes, all colors, all nations. This is the time where we can exercise great unity and help those that need help and support those that need support. And anyone that has extra must give. Okay. This is what we do to find our way out of this. And I think that if we do this with love, when we're on the other side of lockdown, it's very possible we're going to be different people in the best way. Okay, now you talk to Sadhu and Raki, okay? Okay. Christina, they don't know all the world people fame, but we know many people donate and many people helping for the Kathmandu people. But the Kathmandu people, they know only Christina is helping them, so they know only your name, so they say thank you to you. Okay, well, it's my pleasure. I stayed in the camp for 1 year and loved all the children and met all of the families and spent a lot of time. So this is like my family too. So this is what I must do, and I'm happy to do it. We are all one. Yes, they also respect you like family in the Kathmandu people. Yes, it's my family in Rajasthan. Thank you. Welcome. No problem. Thanks to you for helping this Kalbelia community. That it's very good you do something best in lockdown. So we are very proud of you that you are doing your best. We're talking about who? Me? About We're you. doing it together. Yeah, we are And doing so many together, but people. it's I'm your really idea. game for this campaign. It's not just Christina Gomez. Many people from I all know. over the world. I know all Japan, them on the Chile, page. Mexico, Spain, France, Switzerland, USA, many countries. Many
आज हम खड़े हैं पुष्कर की कालबेलिया बस्ती में। कालबेलिया बस्ती में आज 100 कट्टे आटे के और उसके साथ में अन्य सामग्री मिर्च मसाले तेल वितरित किया गया है। यह सामग्री विदेशी पर्यटक क्रिस्टीना गोमेज की ओर से वितरित की गई है। क्रिस्टीना गोमेज गत 2 माह से यहाँ लगातार कोविड-19 में सहायता पहुँचा रही है और इस सहायता को आगे पहुँचाने में हमारे साथ में है पुष्कर की प्रसिद्ध नृत्यांगना राखी कालबेलिया, जो कि राखी कालबेलिया बहुत ही चिर प्रसिद्ध नाम है। राखी ने कई देशों में जो है अपनी कला का जादू बिखेरा है। तो हमारे साथ आज राखी है, बताइए कि किस प्रकार से ये सामग्री वितरित की जा रही है और यहाँ क्या क्या गतिविधियाँ इस स्कूल में चल रही है, जी बताइए। जी सर, मैं वो क्रिस्टीना गोमेज के साथ यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल चलाते हैं छोटा सा, और मैं डांस भी सिखाती हूँ। तो उन्होंने हमारी जब से लॉकडाउन हुआ जब से मदद कर रही है, सारे कालबेलियों की खाने की पीने की सबकी हेल्प कर रही है, जिसमें 15 किलो आटो है, 2 किलो तेल है, पाव मिर्ची है, पाव धनिया है, पाव हल्दी है, किलो शक्कर है, किलो वो दाल है, जीरा है, सारा सामान मिल रहा है। इसके अलावा आपकी कई गतिविधियां जो है देखने में मिल रही है, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ स्कूल में वर्णमाला जो है पूरा चार्ट है, नंबर का चार्ट है, अल्फा बीटा का ABCD का है। तो यहाँ किस प्रकार से आप एक स्कूल चला रहे हैं और किन की सहायता से स्कूल चल रहा है और सरकार की ओर से आपको क्या क्या सहायता इस स्कूल के लिए मिल रही है या नहीं मिल रही है और आपकी क्या समस्या है इस कॉलोनी की है? जैसे हमारे को सरकार की तरफ से इस स्कूल के लिए कोई मदद नहीं मिल रही है, वो कर रही है सिर्फ वो बाहर से मदद करती है, वो क्रिस्टीना गोमेज है वो ही करती है। और हमारी यही समस्या है कि हम लोगों के पास लाइट नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, सारी ये चीज़ों के लिए हमारे बच्चे हम सारे परेशान हो जाते हैं। गर्मियों में और सर्दियों में बारिशों में सब परेशान रहते हैं। हमारी एक ही ख्वाहिश है कि हमारी कॉलोनी में लाइट लगनी चाहिए। सरकार से यही निवेदन है हमारा कि लाइट आनी चाहिए। हम लोग यहाँ 100 फैमिली के परिवार रहते हैं, तो 100 फैमिली परिवार में कैसे लाइट नहीं आ जाता है? जहाँ 5 घर है वहाँ लाइट है, यहाँ 100 घरों की बस्ती है तो वहाँ भी तो लाइट लगनी चाहिए। यहाँ पिछले हफ्ते देविका तोमर ने आई थी SDM साहब ने, उनसे हम ये ख्वाहिश की थी कि हम लोगों को लाइट चाहिए। हमारे को ये ख्वाहिश है कि उन्होंने हमारी मदद करेगा और मदद करेगा, हम ये सोचते हैं। उनकी फीलिंग से ऐसा लगता है, उनका मन कह रहा था कि भाई लाइट लगाए। जैसे यहाँ आए थे उनके हाथों से भी खाना बांटा था यहाँ डेरों में कालबेलिया बस्ती में, और वो मदद करने का बोला कि हम लाइट लगवाएंगे। इसके अलावा आप एक लोक कलाकार हैं और आपने अपनी कला का जादू विदेशों में बिखेरा है। क्या सरकार ने इस प्रकार की कोई विशेष सुविधा आपको यहाँ मुहैया कराई है? जी, सरकार से तो कोई सुविधा नहीं मिली और नहीं कभी भी ऐसा मौका मिला और नहीं कभी चांस मिला। ये तो सिर्फ मैं डांस सिखाती हूँ बहुत सालों से, 15-16 साल से मैं डांस सिखाती हूँ फॉरेनरों को। उन्होंने मेरी मदद की बाहर ले जाने की, बाहर प्रोग्राम देने की। उन्होंने बोला भाई तुम्हारा कल्चर है तो हम बाहर बांटना चाहते हैं, विदेशों में इंडिया में कहीं भी बांटना चाहते। तो अभी बहुत सारी फॉरेनर है जो उनके ID पर ये लगाती है, जैसे पाओला सपेरा, माया सपेरा, बहुत सारी फॉरेनर है जो हमारा कालबेलिया का नाम लेकर चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, राखी की ओर से बहुत अच्छी पहल की हुई है। यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए आज राशन सामग्री तो बांटी गई है। इसके अलावा भी इनकी कई सारी मांगे हैं, जैसे यहाँ पानी, बिजली, सड़क, ये चीज़ें इनकी बस्ती में नहीं हैं। जैसे राखी बता रही थी कि गत सप्ताह कुछ दिनों पूर्व पुष्कर की SDM देविका तोमर भी यहाँ पहुँची थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि निश्चित रूप से आपकी बात आगे पहुँचाई जाएगी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरे जो है कालबेलिया समाज को उपलब्ध कराई जाएगी। कैमरामैन मिनल शर्मा के साथ दिनेश पाराशर। कालबेलिया बस्ती के जागरूक नागरिक जन सेवक जो है कल्याणनाथ जी है। कल्याणनाथ जी बताएंगे क्या समस्या है आपको यहाँ है और ये जो राशन सामग्री आपको दी जा रही है किन की ओर से दी जा रही है, जी बताइए। ये मेरा नाम कल्याणनाथ जी हैं और यहाँ बस्ती के मैं समाज सेवक भी हूँ और अभी बीच में अगले हफ्ते यानी कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार पटवारी साहब
सारे लोगों ने आए थे, तो उस टाइम पे मेरे को पूछताछ किया था। बोले भाई कल्याणनाथ जी, ये आपको महामारी की टाइम में इतनी परेशानियां आ रही हैं, तो इस परेशानियों के आधार में आप कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो। तो बाकी हम उनको मुद्दा रखा था कि बोले सर, हम इतने वर्षों से, आज करीब 20-25 वर्षों से हम निवास कर रहे हैं, और हम बार बार में सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि बोले कि पानी और लाइट की हमारे को सुविधा की जाए, तो हमारे यानी कि बच्चे भी यहाँ सुरक्षा पढ़े जाएँ। और स्कूल के अंदर भी ये जो बच्चे पढ़ते हैं तो गर्मी में, सर्दी में, हर टाइम में यानी कि ये परेशान है। तो तहसीलदार साहब ने भी बताया कि बोले भाई कि कल्याणनाथ जी, आप अभी महामारी के निकलने के बावजूद में आपकी जो भी कुछ बात है वो हम बात आगे के लिए रखेंगे, और तुम्हारी जो भी होगा हमारी तरफ से हम सुविधा करेंगे। और बहुत अच्छी बात है, प्रशासन ने इनको सकारात्मक जवाब दिया है और ये कहा है कि कोविड-19 जैसे ही ख़त्म होगा, लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद यहाँ की जो समस्या है वो आगे बता दी जाएगी, सरकार और कलेक्टर को बता दी जाएगी, और निश्चित रूप से इस कॉलोनी में एक दिन जो है रोशनी देखने को इनको मिलेगी और पीने को पानी मिलेगा। हमारे साथ इस वार्ड 8 के वार्ड पंच सुखदेव रावत है। सुखदेव रावत भी यहाँ सेवा में जुटे हुए हैं, और जो ये राशन सामग्री बांटी जा रही है बाकायदा लिस्टेड करके लोगों को दी जा रही है, जिससे मान लो कभी कोई अगर पूछता भी है तो आपके पास में पूरी लिस्ट है। इसके अलावा जो विदेशी पर्यटक है वो ऑनलाइन थी, और ऑनलाइन होने के कारण उसने जिन जिन लोगों को राशन सामग्री दी गई वो वीडियो पर देख रही थी, और सुखदेव जी उसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे। सुखदेव जी बताइए, किस प्रकार से आप सेवा कार्य को कर रहे हैं? सर, हम है ना, मतलब कि मैं मेंबर संगीता रावत और मेंबर पति हूँ सुखदेव रावत। तो हम पंचायत से सरपंच साहब की तरफ से भी इनको हेल्प करवा रहे हैं, और जो विदेशी फंड से भी आ रहे हैं उनको लिस्ट के अनुसार से इनकी हेल्प करवा रहे हैं, और हर 10 दिन के अंदर इनको सामग्री पूछी जा रही है। इनको कोई कष्ट नहीं है, और कोई कष्ट नहीं है। और इनके सर ये है कि थोड़ी सी परेशानी ये है कि इन लोगों को बाकी को जो गेहूँ मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है, उनको भी राशन ऑनलाइन के लिए दे रखा है। एडीएस साहब ने आदेश कर दिया, अभी इनके सब काम कर रहे हैं। और आगे ले सर ये है कि इनके, मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी जो लाइट की योजना है वो भी जल्दी जल्दी पूरी करें। अभी हम जन सेवक कल्याण जी और हम जाके 15 तारीख को एचएम साहब को 18 तारीख को एप्लीकेशन दे के आए। उन्होंने कहा कि हम आपकी 15-20 दिन में कार्रवाई करेंगे। ये है वार्ड पंच के पति संगीता जी के, बता रहे थे यहाँ ये जब से लॉकडाउन हुआ तब से ही यहाँ सेवा कर रहे हैं, और यहाँ बस्ती के लोग इनसे काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। और जो यहाँ के गनाड़ा के जो सरपंच है उनकी ओर से भी यहाँ सामग्री बांटी गई है। इसके अलावा गनाड़ा जो सरपंच है बराबर लगातार यहाँ सेवा में जुटे हुए हैं, और यहाँ की जो समस्या है लाइट, पानी, बिजली की, इसको लेकर भी ये प्रशासन के पास में गए थे, वहाँ से इनको सकारात्मक जवाब